Hello class. Today I am telling you about some more topics relating to national income. Today's topic is circular flow of income. Circular flow of income means flow of income between all the sectors of the economy. If I am talking about all the sectors, that means economy is divided into so many sectors. There are 4 sectors in the economy. 4. Number 1, household sector. Household sector is the sector who is the owner of all factors of production. Question arises why household sector is the owner of all factors of production. I am telling you, second sector of the economy is producers. Okay, this sector hires or purchases factors of production from the household sector and in return give them in return something like income. Right now, producing sector gives money in return of factors of production. Third sector is the government sector. Government sector includes government as a welfare agency as well as government as a producer. As we know that government do both of the activities, welfare activities as well as producing activities. Why it is third sector, I am telling you in this video. Okay, and the last one is fourth sector is rest of the world. Rest of the world or the external sector through which import and export activities made by an economy. Okay. Now the question arises, why sequence is like this? Why number 1 sector is household sector, why number 2 is producing, third one is government, and the fourth one is external sector or the rest of the world. बहुत ध्यान से पूरी कहानी को समझिएगा क्या होता है ये मनी का फ्लो तो अब शुरू हुआ है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस मनी का फ्लो तो अब शुरू हुआ है. ह्यूमन रेस तो बहुत पहले से है. ह्यूमन रेस जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, कंफर्म है उस समय लोग अपनी ज़रूरतों को अपने आप से पूरा करते थे. एज यू नो अबाउट बार्टर सिस्टम एंड बिफोर द एडवेंट ऑफ बार्टर सिस्टम पीपल आर सेल्फ रिलायंट. They produces goods and services for self consumption only. They are not producing for other persons. But human mind is developing time to time. As human mind is developing time to time, the demand pattern of the human beings changes. Everyone is not able to produce all the things for self consumption. हर कोई अपने सामान को अपने आप से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता था. जब तक अपने आप से ज़रूरतें पूरी होती चली जा रही थी तब तक का इकलौता हाउस होल्ड सेक्टर था. सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर. नो वन इज प्रोड्यूसिंग फॉर अदर्स, दैट्स वाई देयर इज नो प्रोड्यूसिंग सेक्टर. और अगर इकलौता हाउस होल्ड सेक्टर है तो सोचो उस टाइम पे ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर belongs to whom? That is household sector. That's why the number 1 sector is household sector, and the household sector is the owner of all the factors of production. Okay? Now, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, लोग अपनी ज़रूरतों को अपने आप से पूरा नहीं कर पा रहे थे. कुछ लोग किसी काम में एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स. आज की तारीख में भी है इस तरह के स्पेशलाइज्ड वर्कर्स. तो जो लोग किसी काम में एक्सपर्ट होते चले गए, उन्होंने उस तरह का काम करना शुरू कर दिया और सबके लिए प्रोड्यूस करना शुरू किया. तो इसी तरीके से जो स्किल्स लोगों के अंदर डेवलप होती चली गई, लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने लग गए ताकि हर कोई उनका इस्तेमाल कर सके. दैट मीन्स सेकेंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में अराइज, दैट इज प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कहाँ से निकले? तो फिर अगर सबसे पहला सेक्टर था हाउस होल्ड सेक्टर तो कंफर्म है प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकले होंगे. Am I right? That's why number 1 sector is household sector and the second sector is producers. Producers produces
goods and services for the whole society, they hire or purchase factors of production from the household sector, because household sector is the owner of factors of production, and in return right now they give income to factors of production. उस समय पे अगर उनसे कुछ सामान, उनसे अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए तो रिटर्न में जो सामान बना रहे हैं वो दे देते होंगे, कुछ ऐसे ही चलता होगा। इकोनॉमीज डेवलप करती चली गई दो सेक्टर्स से, धीमे धीमे करके लोगों की ज़रूरतें और बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन साइज बढ़ता चला गया, कुछ लोग जो प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में लगते चले गए, रिच होते चले गए, कुछ पुअर्स बन गए, कुछ इसी तरीके से चीज़ें चल रही थी। धीमे धीमे करके क्राइम जैसी चीज़ भी आने लग गई। क्राइम से बचाने का काम कौन करेगा? दैट मीन्स अब जब लोगों ने प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी शुरू कर दी, क्योंकि दो सेक्टर, प्रोड्यूसर्स धीमे धीमे करके रिच होते चले गए। आउट ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, some of the laborers converted into producers, and we know that those who are producer, they becomes rich by passing of times. Now they want security. कौन देगा सिक्योरिटी? अगर उनके पास प्रॉपर्टी बनती चली जा रही है तो सिक्योरिटी देने का काम कोई एक ऐसी एजेंसी कर सकती है जो सबको कंट्रोल कर सके। नाउ एवरी इकोनॉमी नीड्स गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का एडवेंट थर्ड नंबर पे इसलिए हुआ। विद इन द इकोनॉमी all the three sectors starts production and consumption activities. Producers work for welfare agency as well as government work for welfare agency as well as for producing activities. गवर्नमेंट दोनों तरह का काम कर रही थी। वेलफेयर एजेंसी के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही थी, साथ ही साथ प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी गवर्नमेंट लगातार कर रही थी। सो दैट with the development of household and producing sector, third sector emerges as a government. Production activities और बढ़ती चली गई। ये तीन sectors, first, second, third, these three belongs to domestic territory of a country. ये तीन sectors goods and services produce कर रही थी within the domestic territory of a country. That's why the flow of money income between these three sectors in a closed economy, अगर हमने कैलकुलेट कर लिया इन तीनों सेक्टर का किसी एक क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो हमारे पास कंप्लीट जीडीपी आ जाएगी। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि डेवलपमेंट इसके बाद भी नहीं रुका। डेवलपमेंट के लिए इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े। जो चीज़ें हमारे पास थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास नहीं थी, कुछ चीज़ें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास एक्सेस थी जो हमारे पास नहीं थी। हमें उन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। एज अ रिजल्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड emerges as the fourth sector of the economy, जिनके बीच हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लग गए। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बढ़ने के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जिससे जीडीपीज और ज़्यादा बढ़ने लग गई। बिकॉज नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं बल्कि बाहर के लिए भी हम प्रोड्यूस करने लग गए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री के अंदर बढ़ने लग गई और जीडीपी का लेवल इकोनॉमीज के अंदर बढ़ने लग गया। नाउ इट इज क्लियर। एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स import and export of goods and services as well as कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इन सब का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा तेजी से स्टार्ट हुआ। ओके, तो if you understand about these four sectors, now I'm starting topic regarding real flow and monetary flow. As you know that in your class 12, now there is only two sector economy is there. Two sector economy means sector number 1 and sector number 2. That means flow of income between these two sectors, that is household and producers. सिर्फ ये दो है। तो now number 1, real flow. Real flow between two sectors of the economy. Okay, real flow, it refers to flow of goods and services between
sectors of the economy. Real flow refers to flow of goods and services between all the sectors of the economy. Clear? Now there are two sectors. Number one is household and number two is producers. There is no advent of money. अभी तक मनी की शुरुआत ही नहीं हुई, आप ऐसा मान के चल सकते हो जब तक हम लोग रियल फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं. There is no monetary transaction between different sectors of the economy, or we can say that real flow just refers to flow of goods and services between the economies. Household sector is number one in the economy and producers are number two. That means शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? They are the owners of factors of production. Household sector. तो प्रोड्यूसर्स अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो कंफर्म है हाउसहोल्ड सेक्टर से दे विल टेक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर. दैट मींस अंडर रियल फ्लो दिस एरो इज द फर्स्ट एरो फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर. दिस रेफर्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. That means producers are hiring or purchasing factors of production from the household sector. अब अगर हमने हम as a producer, if I am a producer, हमने किसी से factors of production लिए तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा. This is real flow. That means there is no monetary transaction happens between the sectors. So in return producers give them goods and services. Okay, from household sector producers hire or purchase factors of production, and factors of production means land, labor, capital and entrepreneurship, and in return they give goods and services produced to the household sector. क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए थे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो उन्होंने इनसे ले लिया. बदले में उन्होंने जो सामान बना के तैयार किया हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में वापस वो दे दिया. फ्लो इज कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी. ओके, सेकंड इज मॉनेटरी फ्लो. मॉनेटरी फ्लो नाम से ही पता चल रहा है देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन different sectors of the economy. Different sector I mean to say only two sectors, because in your course two sector model is there only. So under monetary flow, number one is household and number two is producers. Okay, monetary flow is just opposite to real flow. Monetary flow is just opposite to real flow. लेकिन अगर आपको monetary flow को बहुत अच्छे से समझना है, monetary flow refers to flow of money between different sectors of the economy. That's it. It is the definition. Monetary flow is reciprocal of real flow. लेकिन अगर आपको मॉनेटरी फ्लो को समझना है तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा रियल फ्लो चलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत रियल फ्लो से होगी, बट वी कैन नॉट शो द डायरेक्शंस, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर. वी कैन नॉट शो देम. लेकिन शुरुआत तो भाई वहीं से होगी. बहुत ध्यान से देखना क्या करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू रियल फ्लो, प्रोड्यूसर्स hire or purchase factors of production from household sector. Okay, and in return gives goods and services. ये हम लोग का था रियल फ्लो. शुरुआत यहीं से होगी. फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर्स hire or purchase factors of production, but we cannot show this. So शुरुआत यही हुई है.
but we cannot show because it is monetary flow and we have to show only flow of money from one sector to other. तो हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर्स ने क्या लिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इन रिटर्न व्हाट दे आर गिविंग देम? फैक्टर पेमेंट. नाउ इट इज रिलेटेड टू मनी. फैक्टर पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या होंगे? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट. तो ध्यान से देखो, फर्स्ट एरो इज गोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउसहोल्ड सेक्टर एज अ फैक्टर पेमेंट, बट द रियलिटी इज फैक्टर पेमेंट क्यों जनरेट हो रही है वो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए होंगे या परचेज किए होंगे, बदले में फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं. गुड्स एंड सर्विसेज जो शो हो रहा है वो हम शो नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि हम लोग को सिर्फ मनी के फ्लो को दिखाना है, हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को नहीं दिखाना है, तो इसे भी मिटा देते हैं. नाउ प्रोड्यूसर से फैक्टर पेमेंट हाउसहोल्ड को मिल गया, हाउसहोल्ड के पास पैसा आ गया. हाउसहोल्ड क्या करेगा? प्रोड्यूसर्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने पास रख लिए, बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मनी दे दिया. अब हाउसहोल्ड सेक्टर के पास मनी है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास गुड्स एंड सर्विसेज है. क्या होगा? हाउसहोल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसे को खर्च करेगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड सेक्टर के पास जो पैसा था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पर प्रोड्यूसर्स के पास पहुंच गया, और बदले में जो गुड्स एंड सर्विसेज थी वो आ जाएगी, बट वी कैन नॉट शो गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट इज मॉनेटरी फ्लो. नाउ इट इज क्लियर. दिस इज टू sector monetary flow. Okay, now the last one is complete circular flow. Okay, first of all I am telling you about circular flow. दो सेक्टर के मॉडल को हम लोग पूरी तरीके से देख चुके हैं, अब हमें सिर्फ सुनना है इसके बारे में, तो बहुत ध्यान से हर कोई. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to the unending flow of the activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy. This is an unending flow of income. Okay, सर्कुलर फ्लो कभी खत्म नहीं होगा. सर्कुलर फ्लो के खत्म होने का मतलब है इकोनॉमी का खत्म हो जाना. This is unending flow. Okay, each activities is the cause as well as consequence of the other activity. Production and producing sector generates income for the households who are the owners of factors of production. Expenditure by the households generate demand for further production. Accordingly, production, income generation and expenditure keep chasing each other. तो क्या हो रहा है यहाँ पे सर्कुलर फ्लो के टाइम पर? हो क्या रहा है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसकी भाई ज़रूरत हर किसी को है, ठीक. गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की वजह से इनकम का जनरेशन होगा, क्योंकि वो सामान अगर मार्केट के अंदर बिकता है, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांडेड इन द मार्केट, दिस जनरेट्स इनकम, एंड इनकम मोटिवेट्स द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जब गुड्स एंड सर्विसेज पहले के मुकाबले और ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, इनकम और ज़्यादा जनरेट होने लग जाएगी, इनकम की और ज़्यादा जनरेट होने की वजह से और ज़्यादा डिमांड होने लग जाएगी. ये फ्लो इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा. दैट मीन्स ऑल द एक्टिविटीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर एक्टिविटी. दीज आर jointly together and increases the growth of GDP. Once again, circular flow of income refers to the
unending flow of the activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy. Okay, the producers and the households in particular. Each activity is the cause as well as the consequence of the other activity. Production in the producing sector generates income for the households who are the owners of factors of production, and expenditure by the household generates demand for further production. Clear? तो मनी का फ्लो लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। प्रोड्यूसर्स गुड्स को लगातार प्रोड्यूस करते रहेंगे और गुड्स के प्रोड्यूस होने पर, चलो फ्लो को बनाते हैं फिर देखते हैं। Number 1 is production of goods and services. Production of goods and services. अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। ठीक, प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से मिले होंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। दैट मीन्स production of goods and services leads to generation of income for household sector. Generation of income for household sector. ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंगेज हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ गई। ठीक, अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ गई तो हाउस होल्ड सेक्टर ने डिमांड बढ़ानी शुरू की। डिमांड बढ़ाने का मतलब है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, दैट इज एक्सपेंडिचर। डिमांड बढ़ानी शुरू की। अब डिमांड अगर बढ़ानी शुरू की तो डिमांड में लीड्स टू मोर एंड मोर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी, फिर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम और ज्यादा आती जाएगी। हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आएगी, वो और ज्यादा अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे अपने लिविंग स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और इसी तरीके से ये फ्लो लगातार चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, generation of income and disposition of income, that is consumption expenditure. Okay, now if you have any doubt you may ask by calling me, if you have my number, or you may comment on this. सब्सक्राइब कर लेना, लगातार आप लोगों के पास वीडियोस आती चली जाएंगी और पूरे का पूरे कोर्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू।